Hello, welcome back learners to the channel. So yes, I'm back with Pariksha Pe Charcha this time. So this is Pariksha Pe Charcha 2021. So in this video, I'm going to tell you about how you can participate in this Pariksha Pe Charcha 2021. So I've already opened this website. I'll provide you this link in my description box, so don't worry. So you can just see that here you can see this participate button and now सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है participate. How you want to participate as a student, self participation, or student who do not have any mobile phones and their personal numbers or their personal email IDs. So yes, they can also participate through their teacher's mobile number or email IDs. Okay, so don't worry. Yes, जिनसे भी बच्चे के पास अगर नहीं है phone number या email ID, so don't worry, you can also participate in this. Other than that, teachers can also participate. Yes, this time teachers are also going to participate, and how and what are the rules and what do you have to do for that? I'm going to tell you that also. Other than that, पेरेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस. यस, अभिभावक भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो यस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस. So let's talk about a PPC 2021 and rewards. So yes, there are some rewards to motivate you. Don't worry and don't think like कि just virtual conference है. इसमें आपको rewards भी मिलेंगे. So yes, go through with this rewards portion. For that, I'm just going to read out some of the points here. Okay, so winners will get the opportunity to be a direct participant in the Pariksha Pe Charcha virtual event. So don't think this will be the physical. Yes, this is just going to be virtual Pariksha Pe Charcha 2021. And every winner is going to get a specially designed certificate of appreciation. So yes, I'm going to show you that how it will look like. Yes, I have already participated. So moving to the every winner will also get a special Pariksha Pe Charcha kit. So winners, yes, winners are also going to get a special kit, right? Okay, and the last one is the one, and some group of students will be going to meet Modi ji, yes, our Prime Minister, and they can ask some questions from him personally. And each of these special winners will also get a digital souvenir of their autographed photograph along with the Prime Minister. So yes, this is the golden opportunity to meet your Prime Minister. Yes, why not? Okay, so moving to the guidelines, what you have to do. So just go through with it. I'm just going to tell you some important point, that is participation is open for school students of classes 9, 10th and 11 and 12th only. Yes, यहाँ पर केवल 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र ही इसमें भाग ले सकते हैं. और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको रजिस्टर करना है, आपको कोई एक थीम सेलेक्ट करनी है, और आपकी जो भी आप थीम सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो वर्ड लिमिट है उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं. यस, इफ यू आर गोइंग टू एक्सीड इट, यू कैन नॉट सबमिट इट. यस, सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड, प्लान अकॉर्डिंगली. अगर आप उसी के अकॉर्डिंगली वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली अगर आप प्लान नहीं करेंगे, तो यस, आपको बाद में उसे कट शॉर्ट करना पड़ेगा, एंड एट द एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप पहले से ही अपनी प्लानिंग करके चलें कि आपका जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उसकी क्या वर्ड लिमिट है, राइट? एंड जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसके भी लिमिट होनी चाहिए, दैट इज 500 characters ओनली. एंड अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एंट्रीज, everyone and every participant is going to get one certificate, right? And participants, teachers can also participate in this. Students, teachers and abhibhavak, yani ki parents can also participate in this. Other than that, you can use your parents, teachers, and any other student can also use their personal mobile numbers as well. Okay, so moving to the
इसमें अभी कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने थोड़े से पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो यस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. लास्ट में और तो ज़्यादा कुछ नहीं है. एक OTP आएगा, आपको उस OTP को एंटर करना है एंड nothing important more here. Okay, so moving to the participation of the students. So what you have to do here, participate through teacher may be selected by teachers to log in and enable their students. So yes, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई पर्सनल नंबर नहीं है, पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, तो आप अपने टीचर के मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन लेकर और अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं. सो इस बात की टेंशन मत लेना कि मेरा कोई पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है या मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड इट, या मेरे पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पाएंगे. सो डोंट वरी, यू कैन यूज योर टीचर्स मोबाइल नंबर फॉर दैट. ओके, आई थिंक दैट वुड बी मोर गुड फॉर द स्टूडेंट्स जिनके अपने पर्सनल मोबाइल्स नहीं है या कोई पर्सनल ईमेल आईडीज नहीं है, अगर फैमिली मेंबर्स की भी नहीं है. सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए. अगर आपको क्या पता इफ यू गेट selected and how they are going to communicate with you, no? So I suggest you to use your teacher's number or email ID. Okay, so now here is some guidelines for the parents and the teachers. So participation is open for all the parents and teachers, and parents and teachers may participate in the contest by registering on My Government platform. For those participating from outside India, registration can be done using OTP and email ID. Okay, so parents and teachers may participate only in one specified theme. So as for the students, it's same for the parents and teachers as well. You just have to select one theme. Okay, not more than that. If you think कि मैं 2-3 times entry submit कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, so I think that's not a good option. Just go with the one theme and submit your entries. Okay, and it should be creative, original and simple. So it's just saying that कि to the point रहिए, don't अपने आप को मिस डायरेक्शन मत करिए, एक ही डायरेक्शन रखिए अपनी, ठीक है, और उसी को लेकर उसके बारे में लिखिए. सो आई डोंट थिंक टीचर्स को मुझे कुछ गाइड करने की जरूरत होगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी नॉलेजेबल. ओके, मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स हेयर. सो इम्पॉर्टेंट डेट्स हेयर आर 18 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 14 मार्च इज द लास्ट डेट. सो येस, बी क्विक जिन्होंने अभी तक इसके बारे में सोचना नहीं शुरू किया है. सो येस स्टूडेंट्स, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी. आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन से ज़्यादा वक्त लेगा आपका, एक दिन या 1.5 दिन, उससे ज़्यादा तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब आपको 500 वर्ड्स मैक्सिमम दिए जा रहे हैं या 1500 वर्ड्स मैक्सिमम दिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतना लिखने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा. Okay, so let's talk about the themes. So क्या क्या themes हैं बच्चों के लिए? So first of all, I'm going to talk about the students theme. The first theme is exams are like festivals, celebrate them. परीक्षाएं त्योहारों की तरह हैं, उनका उत्सव मनाएं. तो इसमें आपको एक गतिविधि यानी कि एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक पेंटिंग बनानी है. पेंटिंग का साइज भी गिवन है और उसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपको उस फेवरेट सब्जेक्ट का एक सीन ड्रॉ करना है और बताना है कि ये किस तरीके से एक त्योहार की तरह है, ये किस तरीके से एक फेस्टिवल की तरह है. ठीक है, इसके बाद सेकंड चलते हैं. सेकंड इज इंडिया इज इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर. भारत अतुल्य व अद्भुत है, यात्रा करें और पता लगाएं. तो इसमें भी आपके पास कैरेक्टर्स लिमिट है, दैट इज प्लेसेस टू सी. ओके, सो यहाँ पर आपको हिंट्स भी दिए गए हैं कि एक्टिविटी में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि प्लेसेस टू सी, फूड टू relish, experiences to remember. Yes, so यहाँ पर भी आपको लिमिट दी गई है कैरेक्टर्स की, so be in your limits. Okay, okay, third theme is as one journey ends, another begins. एक यात्रा के खत्म होते ही दूसरी यात्रा आरंभ होती है. ठीक है, या दूसरी यात्रा की शुरुआत होती है. तो यहाँ पर एक्टिविटी या गतिविधि क्या दी गई है कि आप अपने किसी भी स्कूल एक्सपीरियंस, यानी कि स्कूल का आपका कोई भी जो सबसे यादगार अनुभव हो, आप उसका वर्णन करें. लेकिन यहाँ पर भी लिमिट दी गई है, लिमिट का ध्यान देंगे, 1500 कैरेक्टर्स. मूविंग टू द फोर्थ थीम ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू.
कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा। गतिविधि क्या है दी गई है, इसमें एक्टिविटी है कि आपको 1500 कैरेक्टर्स में बताना है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी भी रिसोर्सेस पर या किसी भी अपॉर्चुनिटीज पर, देन व्हाट वुड यू डू फॉर योर सोसाइटी एंड व्हाई। हम कभी ना कभी ये बात जरूर बोलते हैं कि ये इसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो आपके पास अगर ये ऐसा कभी हो आपके साथ, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ही हट जाएं, तब आप क्या करेंगे सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। सो जस्ट गो फॉर इट, डोंट वेट टू मच एंड डोंट थिंक टू मच, जस्ट बी योरसेल्फ। आपके दिमाग में जो भी बातें आए उसे लिख डालिए और भेज डालिए। ओके, क्या पता वो सेलेक्ट हो जाए। Okay, moving to the next theme, that is be grateful, आभार प्रकट करें। ये बहुत लेटेस्ट थीम है, मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि लास्ट ईयर जो था उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये थीम, जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच हिंट्स फॉर दिस कि क्या है एग्जैक्टली, बट यस थिंक अबाउट इट कि लास्ट ईयर क्या था और लास्ट ईयर हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी है, हमें किसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। सो यस, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट। तो यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड कार्ड बनाना है जिसमें 500 वर्ड्स की लिमिट दी गई है आपको। लास्ट इज द क्वेश्चन टू पीएम, प्रधानमंत्री जी से सवाल। तो आपका जो भी सवाल हो आप उसको 500 शब्दों में बयान कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। थीम फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए क्या क्या थीम्स हैं, क्या क्या विषय हैं, जरा देखते हैं। पहली थीम है योर वर्ड्स मेक योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, एनकरेज एज यू हैव ऑलवेज डन। आपकी सराहना से आपके बच्चे का जीवन संवरता है, हमेशा की तरह उन्हें प्रोत्साहित करें। कितना आसान है, यही है ये आपके लिए। आप हमेशा जो करते हैं बच्चों के लिए बस आपको वही लिखना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। बस जस्ट बी योरसेल्फ। मतलब पेरेंट्स का काम ही क्या होता है, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो बस आपको यही करना है अभी भी। तो इसमें आपको अपनी सोच 1500 वर्णों में लिखनी है। एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के प्रति अपनी सोच व दृष्टिकोण के बारे में लिखें। पहली पंक्ति अपने बच्चे को लिखने दें, फिर आगे आप लिखें। तो बच्चा अपने उसके क्या विचार हैं इस बारे में, एक पंक्ति या एक वाक्य बच्चा लिख ले, उसके आगे आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम क्या दी गई है पेरेंट्स के लिए, बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड, कीप डिप्रेशन अवे। अपने बच्चे के दोस्त बने, अवसाद व चिंता से दूर रखें। इसमें भी एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको एक पोस्ट कार्ड लिखना है अपने बच्चे को और ये बताने के लिए कि आप मेरे लिए इतने ज़्यादा स्पेशल क्यों हैं। लेकिन उसमें भी लिमिट है 500 वर्ड्स की, सो डोंट फॉरगेट दैट। ओके, सो मूविंग टू द टीचर्स टॉपिक्स नाउ। सो टीचर्स के लिए क्या क्या थीम्स दी गई है। यहाँ पर एक ही थीम दी गई है टीचर्स के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, इसके लाभ एवं इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें आपको लिमिट दी गई है 1500 वर्णों की, यानी कि 1500 कैरेक्टर्स में आपको एक क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। सो यस, आई थिंक दिस इज द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ, जो अभी लास्ट ईयर हमने फेस किया एज अ टीचर। एंड अभी मुझे नहीं पता है, नॉट इवन एनीवन नोज कि अभी कब स्कूल एजुकेशन एज फिजिकली बच्चे जाएंगे वहाँ पर और अटेंड करेंगे क्लासेस, कब ये होगा किसी को भी नहीं पता है अभी। तो जैसे ही सिचुएशंस बेटर होंगी, यस स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन। सो अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन पर ही फोकस है, एंड एवरी स्कूल इज जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ओनली। सो हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल एंड ऑल these things. Yes, students, teachers have done a great job last year and they're doing it at present also, no doubt. Okay, so yes, teachers can write about this really well, I think so. Okay, so अब यहाँ पर तुम्हारी themes हो गई।
अब थीम्स के बाद हमें क्या करना है, पार्टिसिपेट नाउ। पार्टिसिपेट नाउ यानी कि भाग लें पर हमें क्लिक करना है, और उसके बाद आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप सेल्फ पार्टिसिपेशन, लॉग इन टू पार्टिसिपेट, आपका एक पेज इस तरीके से ओपन होगा जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि आपको क्या क्या फिल करना है। आप दो तरीके से यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड। अगर आप पहले भी, जैसे कि स्कूल्स में ऑलरेडी पहले बोला जा चुका होता है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, इसके अलावा या फिर अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए होंगे पहले भी तो आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा। अगर नहीं भी है तो जस्ट गो फॉर इट, यू कैन यूज योर मोबाइल नंबर फॉर लॉग इन, एंड इफ यू हैव एनी ईमेल आईडीज, सो फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, any of them you have, you can just log in it up and you can submit your entries there. And what kind of certificate you are going to get is, so this is the certificate that you are going to get. Yes, my name is Muskan, so Muskan name is written here, and other than that, that's it. So learners, if you have any queries related to it, so you can ask me, and so stay home, stay safe, keep learning. Thank you.